Student, let's know today the applications of work, right? Last class we have studied about work is force into displacement. W is equal to F dot S. Yes, sir. Now let's know today few applications, means some concepts, some synopsis regarding work done. How to find work done in various cases. See, in this question it is given work done in pulling the bob of mass M of a simple pendulum of length L through an angle theta to vertical by means of a horizontal force. That means here I have given some horizontal force F and I took the position of the pendulum bob to a height. Let, if this is the ground level, let this height is H and total length of the string is L. If I'll draw the perpendicular from this position, this height is H and this height is going to be total length L minus H. How much work is done by the applied force? Yes, and I am giving the applied force in this direction and the body is also getting displaced in that direction because body's position was at this position and it got displaced in this position. The force is given in this direction, the body is getting displaced also in this direction. So the projection of the body, if I'll see from this point, it was displaced by this much, correct? So let's know how to find the work done by the applied force. What is the formula for work done, students? What is the formula? It was at this position, it moved to this position, so this was the displacement. Yes or no? And work is equal to force into displacement, and here force is in this direction and body is also getting displaced in this direction. So if I'll be calculating work done by the applied force, right? Work done by the applied force, that is equal to F into this displacement. Students, see, if this is theta, if this is theta, then semi displacement, which displacement we want to find? Yes or no? Someone may say, sir, body was at this position, it got displaced this much. But I told you, I will take the displacement, the component of displacement along the direction of applied force. So we have to find the work done by the applied force. We are giving the applied force in this direction and the body is also getting displaced in this direction. So the displacement from the mean position is this much. And if this is a right angle triangle and this is, if this is L, then we can say this is L sine theta. This is a right angle triangle, this length is L, length of the string, this angle is theta and this is 90 degree. Sine theta is equal to P by H. If this is theta, this is perpendicular, this is hypotenuse. So sine theta is equal to how much? P by H. P means this perpendicular divided by H means L. So P is equal to how much? L sine theta. So I wrote this one L sine theta. And the direction of applied force and the direction of displacement is same here. So you can write work done by applied force is equal to F into the displacement is L sine theta, and both are in same direction, so it is positive. So this is the work done by the applied force. But if I will ask what is the work done by the force of gravity, work done by gravitational force, what is the work done by gravitational force? Friends, gravitational force means it weights and the weight of the body always acts vertically downward. So if I will take the weight here in this point, the weight is like this mg. In this point the weight is also like this mg. Yes or no? And if I'll see from this point of view, I have to take the component of displacement along the direction of force. Mg is acting in this direction. Here also Mg was acting in this direction. But the body get displaced in which direction? The direction of force means this was the displacement H. Yes, sir. So if I'll write work done by gravitational force, I will write Mg into H. See here one thing. This is force, gravitational force Mg. This is the displacement along the direction of gravitational force H. And what is the angle between them? Gravity is acting vertically downward, but the body is getting displaced in upward direction. So the angle is 180 degree. So if I'll put here cos 180 degree, then it is how much? Minus mgh. Right? That is the work done by gravitational force. But sometimes students, this h will not be given. This length of the pendulum is given, string, and this theta is given. Correct? See here. This is length of the pendulum, correct? And this is theta. Understood or not? So in that case, if I want to find this h, then how could I find this h?
I want to find this h. Yes or no? Total length is L. This is L minus h and this is h. Can you suggest? Because see here, if this part I will take, if I will take this L minus h part, let's take in this triangle cos theta. I am drawing the triangle here. It is visible, I think. Just see, this is theta, this is L minus h, and this is L only. If I'll take cos theta is equal to b by h. B means L minus h by L. Yes or no? If I'll divide it, then I can write, see here, just cross multiply. L cos theta is equal to L minus h. So if I'll take h here to one side, then h is equal to how much? L minus L cos theta. So that is L into 1 minus cos theta. So if sometimes this height is not given, this height will not be given in the question, but the L will be given and the theta will be given. So in that case, what you can do, you can replace the h by L into 1 minus cos theta. So by replacing that, I can also write minus mg whole into L into 1 minus cos theta. This can also be written for the work done by gravity. This is the work done by gravity. This is the work done by applied force. So always you have to consider, the most important thing is that what is the, as I told, the direction, the component of force along the direction of displacement, or the component of displacement along the direction of force. It is very much, you have to be very much aware about how to find those things and what is the angle between them and which direction the body is getting displaced and in which direction the force where you are applying. Just see and ask me. Student, this was the example, and in some cases, because you see, when you will be going to deal with many questions, it will be totally the chapter of 11th and 12th in the final exam. You can't see that in work per energy, no other concepts can be applied. Yes, sir. Now, the very next chapter we are going to do with rotational motion, but few things of rotational motion means rotational motion. Just I'm saying one thing. Student, there is something center of mass, right? COM means center of mass. सेंटर ऑफ मास, करेक्ट. ये थोड़ा कंसेप्ट में बता दे रहा हूँ, मैं इसको और एक बार बताऊंगा, बट अभी थोड़ा उसके एप्लीकेशंस होगा, तो इसीलिए मैं उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ. सेंटर ऑफ मास मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बॉडी की पूरा वेट जो है कंसंट्रेटेड हुआ है. मान के चलो, मैंने बताया आपको कि मैंने यहाँ पर एक बॉडी लिया जिसका मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है? क्या ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, या इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, या इस पॉइंट पे? जब आप पॉइंट मास लेते थे, मतलब बहुत छोटा मास लेते थे, तो उसी टाइम पे ये थोड़ा ज्यादा जरूरी नहीं था. बट जब हम कुछ एक सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी लेंगे, रिजिड बॉडी मतलब बहुत सारे पॉइंट मासेस की समेशन जब लेंगे, तो उसी टाइम पे जो वेट है दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, mg, करेक्ट. इस तरह एक बॉडी है, तो इसकी जो ये अगर सर्कुलर बॉडी है, तो उसके सेंटर ऑफ मास, अगर कोई रेगुलर बॉडीज के लिए, आई एम सेइंग अबाउट यूनिफॉर्म बॉडीज, center of mass of uniform bodies, center of mass of uniform body, just note, center of mass of uniform bodies always lies on the geometric center, always lies on the geometric center. अगर body circular है तो उसके center में रहेगा center of mass. I'll teach this one also in rotational motion. Just for now I am saying, let I am taking a rod here. This is a rod of length L, uniform rod, the mass is uniformly distributed. Then at that point also the weight will be acting vertically downward and the center of mass will be acting at a distance of L by 2. Got it? Let I am taking here a chain is like this. A chain is like this. A chain is hanging like this. Let the length of the chain is L and mass of the length is M. So exactly at what point the gravitational force is acting? Throughout the chain, I am hanging a chain vertically downward. At what point? Exactly at the point L by 2. ये डिस्टेंस अगर L by 2 में ले लूं, तो exactly L by 2 में ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. अगर मैं एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले जाता हूं, ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखूं, तो इसके सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से इतनी दूरी पर रहेगा. अगर ये रेडियस r है, तो रेडियस r पे रहेगा सेंटर ऑफ मास. मतलब पूरा इस सिलेंडर का वेट इस जगह पे कंसंट्रेट होगा. अगर मैं इसको वर्टिकली रख दूं, कहीं ना कहीं पे मैंने इसको खड़ा करके वर्टिकली रख दिया सिलेंडर को, सो डेफिनेटली अगर सिलेंडर का लेंथ L है, तो वो सेंटर ऑफ मास अभी इसका यहाँ पर रहेगा. दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास, तो दिस डिस्टेंस विल बी L by 2. अगर मैं कोई एक ट्रायंगल ले लूं तो सेंट्रोइड पे रहेगा, अगर कोई स्क्वायर ले लूं तो उसके एग्जैक्टली सेंटर पे रहेगा. ठीक है. सो दिस आर द यूनिफॉर्म बॉडीज पे, just main purpose of saying this is, in uniform bodies the center of mass means a point where the whole mass, whole weight of the body is supposed to be concentrated.
एंड दैट इज यूजुअली टेकन एज ज्योमेट्रिक सेंटर। तो कोई नॉर्मल फिगर पे जब सेंटर ऑफ मास की मतलब मानो कि मैंने इसको उठाया, तो इसका कौन सा पार्ट को उठाया, ऊपर वाला पार्ट को, नीचे वाला पार्ट को, या इस वाला पार्ट को? तो जनरलाइज केसेस में हम क्या सोचेंगे कि इसकी मैंने सेंटर ऑफ मास को मैंने उठाया, मैंने इस बॉडी को h हाइट पे उठाया। तो h हाइट कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब मैं उसके सेंटर ऑफ मास को h हाइट उठाया। एक सर्कल को मैंने इतना उठाया, मतलब सर्कल के सेंटर ऑफ मास को मैंने उठाया। एक रॉड को मैंने उठाया, तो मैंने रॉड की सेंटर ऑफ मास को उठाया, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात आता है तो वेयर डज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, इट एग्जैक्टली एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। सो दिस वाज द मेन मीनिंग ऑफ सेइंग ऑल दोस। फिर देखो, अभी सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट लेने के बाद अगर मैं आपको बताऊं, अभी तो पेंडुलम बॉब की बात हो रहा था, बट इस तरह से मैंने एक स्टिक रखा, ठीक है, जस्ट एक सॉलिड रॉड है, ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, करेक्ट, दिस लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। इसको मैंने क्या किया, थोड़ा फोर्स दिया और वो इस तरह इंक्लाइंड हो गया, राइट, इट जस्ट गॉट इंक्लाइंड बाय दिस मच एंड दिस एंगल इज थीटा। तो मैंने इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड किया, ठीक है। तो इंक्लाइंड किया मतलब अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो मैंने इसको h हाइट, बट मैंने जब मैंने पूछा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने इस केसेस पे एक रॉड जिसका मास मान के चलो पूरा m है मास, और लेंथ ऑफ द रॉड इज l, मैंने इसको थीटा इंक्लाइन करवाया, तो इस पोजीशन पे मैंने लेके इस पोजीशन पे रख दिया। जो मैंने उसको इस तरह की पोजीशन पे रख दिया, तो क्वेश्चन पे पूछा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने पेंडुलम मास की ग्रेविटी के बारे में देखे, क्या था वो फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला वाज, ग्रेविटी के केस में क्या था, mg लिए थे, पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिए थे, 1 माइनस cos थीटा लिए थे। बट यहाँ पर जो मैंने जो रॉड को मैंने जो उठाया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर काम कर रहा है एक्चुअली, इस पॉइंट पे काम कर रहा है, या इस पॉइंट पे काम कर रहा है, या इस पॉइंट पे काम कर रहा है? अगर इस रेस्पेक्ट में देखो तो ये h है, अगर इस पॉइंट से देखूं मैं, इफ आई बी सीइंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सी हियर, मैंने इतना उठाया, करेक्ट, कोई भी पॉइंट से आप देख सकते हो, इसको लेके यहां तक देखो, नहीं तो फिर यहां से लेके यहां तक देखो, तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली सेंटर ऑफ मास यहां पर था, और मैंने जब उसको सेंटर ऑफ मास को मैंने इतना हाइट उठा दिया, करेक्ट। सो अगर मैं इसको लेके यहां पर प्रोजेक्ट करूं, ये जो हाइट होगा इसको लेके जब प्रोजेक्ट करूंगा तो दैट विल बी सेम आल्सो, नो प्रॉब्लम, यस सर नो। सो जब मैं सेंटर ऑफ मास की बात करता हूं तो मैंने सेंटर ऑफ मास को कितना प्रोजेक्ट करवाया, राइट, आई प्रोजेक्टेड द सेंटर ऑफ मास पूरा। अगर मैं यहां पर l/2 ना लेके, तो हमें सेंटर ऑफ मास को मैंने इतना उठाया, तो दैट मींस ये हाइट मुझे लेना होगा। तो अगर मैं ये हाइट ले जाऊंगा तो ये हाइट क्या हो जाएगा, बस जैसा है वैसा रहेगा, ये जो लेंथ था l/2 हो जाएगा। सो दैट इज वर्क डन विल बी माइनस mg l/2 into 1 minus cos थीटा, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास को उठाया, मैंने सेंटर ऑफ मास को h उठाया। बट अगर पूरा रेस्पेक्ट में देखो तो पूरा लेंथ l नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे कि l/2 में हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो है दिस इज मतलब l/2 पे था सेंटर ऑफ मास, मैंने इस तरह ले लिया। तो बाकी यहां पर अगर मैं इस h को निकालूंगा, सो दिस h विल बी गोइंग टू बी हाउ मच, दिस h इज गोइंग टू बी l/2 1 minus cos थीटा, अंडरस्टूड। तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक इसी तरह अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्टूडेंट मान के चलो और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, कि इस तरह से एक वॉल है, ठीक है, ये भी ग्राउंड है एंड दिस इज आल्सो ग्राउंड, करेक्ट, यहाँ ये ग्राउंड है, और यहाँ पर एक लैडर जो है ना, तो लैडर इस तरह पड़ा हुआ था, राइट, इस तरह लैडर का लेंथ l है, द लैडर वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड, राइट, द लैडर वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड, करेक्ट। सो ये जो लैडर को मैंने अभी क्या किया, आई जस्ट व्हाट आई डिड टू द लैडर, मैंने इसको इस तरह से थीटा एंगल करके मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन करवा दिया, ध्यान से देखो, लैडर था, मैंने इसको थीटा एंगल करके इंक्लाइन करवा दिया, करेक्ट। लैडर का मास m था, अभी वो पूछ रहे व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो मतलब पहले दिमाग पे ये आ जाना चाहिए कि जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास कितने हाइट उठा। तो पहले से सेंटर ऑफ मास किस लेवल पे था, दिस वाज द सेंटर ऑफ मास व्हेन इट वाज लाइंग एग्जैक्टली एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, मतलब ये l/2 पे था। अभी सेंटर ऑफ मास यहां पर चला गया है, सो दिस इज l/2, ये रड का आधा था, ये भी रड का आधा है ना, बट सेंटर ऑफ मास को मैंने कितना लिफ्ट करवाया, मैंने सेंटर ऑफ मास को इतना लिफ्ट करवाया, आई एम कंसर्न्ड विद दिस डिस्टेंस h। सो हाउ टू फाइंड दैट which is gravity is acting vertically downward, mg हमेशा vertically downward एक्ट करता है, यहाँ पर भी vertically downward एक्ट कर रहा है, बट मैंने सेंटर ऑफ मास को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया। सो दैट मींस आई विल राइट वर्क डन बाय ग्रेविटी, इन दिस केस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोइंग टू बी mg h, mg h माइनस, क्योंकि बॉडी वेट नीचे की तरफ और सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ ला कर, तो मुझे इस h को रिप्लेस करना है,
किस पे? क्योंकि एच तो मुझे नहीं दिया है ना, मुझे थीटा दिया हुआ है और L/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा ले लूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, दैट मीन्स H/L/2. So how much is going to be height from here? No, sir, that is nothing but L/2 sin theta. Correct. So I can write the work done by gravity is going to be minus mg L/2 sin theta. Correct. This is the height, and it is negative only. Understood? That is mg L/2 sin theta. ठीक से लिखो इसको mg L/2 sin theta. क्योंकि हाइट, कितना हाइट मैंने सेंटर ऑफ मास को उठाया, ठीक है? दैट इज द थिंग ओवर हियर. और एक एग्जांपल बनाते हैं. Student, first that example is a chain is hanging. ठीक है? From a table, a chain is hanging. ठीक है? Let's see. Let this is a table, student. Correct? A chain is lying on the table, and it's 1/nth part. मतलब 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, half of the length हो सकता है. Doesn't matter. Nth part, 1/nth part. Total mass of the chain is m. M is mass of chain, and L is length of the chain. L is length of the chain. 1/nth part is hanging. मतलब 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 2/3 हो सकता है. It will be given in the question. If 1/nth part is hanging, a rod, a chain of mass m and length L is hanging and is kept on a horizontal table, so that 1/nth of its length is hanging over the edge of the table. 1/nth part of the length is hanging. The question is that how much work will be done, how much work is required to be done. मुझे कितना काम करना होगा ये हैंगिंग पार्ट को पूरा ऊपर की तरफ लेने के लिए, ठीक है? How much work I have to do to take the hanging part onto the table, ठीक है? How much work will be done in taking the hanging part onto the table? See very carefully. Total mass of the chain is how much? M. Total length of the chain is how much? L. So if L/n part is, if 1/nth part is hanging, then how much part is hanging? L/n part is hanging. 1/3. जो भी क्वेश्चन पे दिया रहेगा, मैं जनरल अप्रोच बता रहा हूँ क्वेश्चन की. तो L/n पार्ट हैंग कर रहा है. मुझे इसको अच्छा L/n पार्ट हैंग कर रहा है मतलब पूरा मास m है. पूरा मास मतलब थ्रू आउट द मास, पूरा मास लेंथ L पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. सो लेंथ ऑफ द टोटल चेन इज m. L लेंथ पे m मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. 1 L में 1 यूनिट पे कितना मास रहेगा? मास पर यूनिट लेंथ कितना रहेगा? m/L. करेक्ट. एंड हाउ मच पार्ट इज हैंगिंग? m/n पार्ट इज हैंगिंग. तो मतलब मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर L/n इज हैंगिंग तो टोटल कितना मास रहेगा यहाँ पर? ये जो पूरा मास हैंग कर रहा है, जितना चेन हैंग कर रहा है, तो मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज गोइंग टू बी हाउ मच? मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट. Mass of the hanging part is going to be how much? m/n. So mass of the hanging part is m/n. ठीक है. और मैंने इस चेन को पूरा ऊपर की तरफ उठाया. मतलब चेन की कौन सा पार्ट को? इस पार्ट को, इस पार्ट को या इस पार्ट को? नहीं, मैंने चेन के सेंटर ऑफ मास को उठाया. I just lifted the center of mass. Sorry, I just lifted the center of mass of the chain. जबकि सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे था? अगर मैं इस रेस्पेक्ट में, ये सेंटर ऑफ मास मैंने इसको उठाया, तो इसको उठाया मतलब कितना है? सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है? L/2n. क्योंकि L/n पार्ट इज हैंगिंग, टोटल लेंथ इज नॉट हैंगिंग, 1/nth पार्ट इज हैंगिंग. एंड उसका मैंने आधा, उसकी सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है? L/2n की दूरी पर है. और मास जो है कितना है? m/n है. क्योंकि पूरा मास m है, 1/nth पार्ट इज हैंगिंग. मान के चलो स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि 10 मीटर इज द लेंथ ऑफ द चेन. 10 मीटर इज द लेंथ ऑफ द चेन L. 10 kg इज द मास ऑफ द लेंथ, मास ऑफ द चेन. मैंने बताया कि 1/3 पार्ट जो है ना वो हैंग कर रहा है. मतलब टोटल लेंथ का कितना हैंग कर रहा है? L/3 हैंग कर रहा है. करेक्ट. मास कितना है? 10 मीटर में 10 kg. 1/3 में कितना होगा? निकाल सकते हैं. टोटल मास बाय यूनिट लेंथ इनटू 3, मतलब 3 kg रहेगा. राइट. तो इसीलिए मैंने m/n लिखा.
तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी की जब बात होगा, ठीक है, ऐसे तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट। तो इसकी जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ, सिंबल को, नेगेटिव साइन को छोड़ दो। टोटल मुझे कितना मास उठाना पड़ेगा सर? पूरा मास तो नहीं उठाना पड़ेगा, m by n उठाना पड़ेगा, क्योंकि जितना पार्ट हैंग कर रहा है उतना ही मास मुझे उठाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, करेक्ट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी है, यहाँ पर जी के साथ कुछ बदलाव नहीं है, क्योंकि अगर ये मूविंग प्लेटफॉर्म में होता, मैं ये वर्क कर रहा हूं एक मूविंग किस पे, लिफ्ट पे कर रहा हूं, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है या नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है? ऊपर की तरफ डी एक्सीलरेट कर रहा है या नीचे की तरफ डी एक्सीलरेट कर रहा है? उसी टाइम पे इफेक्टिव एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा, बट मैं ये एक नॉर्मल सिस्टम पे कर रहा हूं, तो इसलिए एक्सीलरेशन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, वो तो इसमें ज्वाइन हो सकता है क्वेश्चन पे। और मैं कितना उठा रहा हूं? एल बाई एन नहीं लेना है, मैंने बताया सेंटर ऑफ मास को मैं उठा रहा हूं, सो दैट विल बी एल बाई टू एन। तो पूरा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो कितना आ जाएगा, mgl by 2n square, right? So how much work will be done in lifting it? mgl by 2n square, correct? Understood? So work done by gravity, मुझे कितना काम करना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए, उसकी वेट को उठाने के लिए पूरा हैंगिंग पार्ट को, mgl by 2n square। ये एक कॉमन अप्रोच है। वेराइटी जब अप्रोच हो सकता है, मतलब कितना अप्रोच हो सकता है कि अगर मैं 1/3 से 1/2 तक ले रहा हूं, 1/3 की पोजीशन पे था, मतलब L/3 हैंगिंग कर रहा था, मुझे कितना काम करना पड़ेगा L/2 को लेने पे, तो चेंज इन वर्क डन, पूरा L/3 को उठाने में कितना लगेगा, L/2n को उठाने में कितना लगेगा, डिफरेंस कितना है, इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत वेराइटी जब क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, बट कंसेप्ट यही है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। जस्ट कीप इन माइंड कि मैं कितना मास उठा रहा हूं, क्या मैं पूरा मास उठा रहा हूं, नहीं, कितना मास उठा रहा हूं ना, उसको कितना पार्ट हैंगिंग हो रहा है, और कितना हाइट उठा रहा हूं। कितना हाइट मतलब कैसे निकालेंगे उसको, सेंटर ऑफ मास करके निकालेंगे कि मैं उसका सेंटर ऑफ मास पहले से कहां पर था और मैं कितना उठा रहा हूं, उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को करना होगा, राइट। जस्ट नोट इट। सो जस्ट सी नेक्स्ट। और एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एक सिलेंडर ऐसे लाई कर रहा था, ठीक है, वन सिलेंडर वाज लाइंग लाइक दिस, मास ऑफ द सिलेंडर m ले लो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर r ले लो, लेंथ ऑफ द सिलेंडर l ले लो। सिलेंडर इट वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड, और मैंने क्या किया, उसको खड़ा कर दिया, हमने इसको खड़ा कर दिया सिलेंडर को। तो ये ऐसे ग्राउंड में लाई कर रहा था, मैंने उसको खड़ा कर दिया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा उसको खड़ा करने में, जस्ट सेम। तो पहले बात ये है कि मैंने खड़ा किया, मतलब क्या किया मैंने उसकी वेट की बराबर कुछ फोर्स लगाया, और उसकी वेट कहां पर लगता है सर, एग्जैक्टली यहां पर लगता है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। एंड जो कि पहले सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से रेडियस की हाइट पे था, और अभी सर आपने उसको यहां पर ले लिया सेंटर ऑफ मास को, तो सेंटर ऑफ मास पहले इस लेवल पे था, और ये जो आपने लिया सर ये L/2 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास लेंथ अगर पूरा लेंथ L है, तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे लाई करेगा, जब हम उसको खड़ा कर देंगे, मास तो m रहा है, मास m है, तो पहले सेंटर मास इस लेवल पे था, तो सेंटर मास इतना उठा दिया मैंने, एंड दिस डिस्टेंस इज r सर, दिस इज L/2, इज द न्यू सेंटर ऑफ मास की हाइट ग्राउंड से, पहले सेंटर ऑफ मास r हाइट पे था, तो सेंटर ऑफ मास कितना राइज हुआ, तो यू कैन सी हियर सेंटर मास गॉट लिफ्टेड फ्रॉम L/2 टू r, L/2 टोटल लेंथ माइनस, तो सेंटर ऑफ मास मैंने इतना उठाया, तो दैट इज L/2 माइनस r। और अभी अगर मैं वर्क डन बताऊं, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, देन विल बी राइटिंग m टोटल मास इनटू g इनटू लेंथ इज L/2 माइनस r। अंडरस्टूड, ठीक है, इस तरह। दूसरा और एक केस मैं यहां पर बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जैसे कि ऑलरेडी आप इंक्लाइन वाले क्वेश्चंस कर चुके हो, जस्ट यू हैव डन मेनी क्वेश्चंस ऑन प्लेन इंक्लिनेशन प्लेन, जस्ट सी, जस्ट मैं बताना चाहता हूं, यहां पर कोई भी एक ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक यहां पर रोल कर रहा है, राइट, ठीक है, दिस एंगल इज गिवन थीटा, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड mg, इस तरफ एक कंपोनेंट है इसका, इस तरफ एक कंपोनेंट है, दिस वन इज हाउ मच mg cos theta, if this is theta, this is theta, already you have done these things, this is mg cos theta and this is mg sin theta, right, and normal reaction is acting in this direction, normal force is acting in this direction, and frictional force is acting in this direction, and body is getting displaced in this direction, body यहाँ पर आ गया कुछ मानो, body is getting displaced, और बॉडी को कौन ला रहा है नीचे की तरफ, mg sin थीटा। अगर मैंने बताऊं कि mg sin थीटा के हिसाब से कितना फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव वर्क डन सर, mg sin थीटा इज अलोंग दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन के दौरान बताऊं,
नॉर्मल डायरेक्शन इस तरह, बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर, सो नेट वर्क डन इज 0. व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? mg के दौरान कितना काम हुआ ना, वही यहाँ पर था, अगर इस पॉइंट पे आ गया तो हाइट कितना चेंज हुआ सेंटर ऑफ मास का, उसी हिसाब से कर सकते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अगर बताऊं, फ्रिक्शन इस तरफ और बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, एंगल इज 180 डिग्री. कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना फ्रिक्शन लग रहा है. तो इस तरह हमेशा ये आपको देखना है कि मैं सेंटर ऑफ मास को कितना उठा रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन पे, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ये सारे चीज आपको ध्यान पे रखते हुए ही वार की क्वेश्चंस करना होगा. यू विल गेट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इन द असाइनमेंट्स एंड द प्रीवियस पेपर्स. ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे.